One disclaimer before starting the video that you are supposed to watch this video in landscape mode. Watch this video in landscape mode, which means अपने फ़ोन को horizontal करके देखना ऐसे ऐसे नहीं, not in this mode, in this mode. Then you will be able to see the PDF properly. Okay? Alright, let's start the video then. Hello guys, welcome back to my channel. I am Navya and today we will be discussing some important questions from another chapter of grade 8, and this chapter is from your geography book. Alright, from geography this is your chapter number 1. The name of the chapter is resources. Now what all is there in this video? Today we are going to discuss some very important questions, VIP questions, very important questions from this chapter number 1, which is resource. And I can assure you one thing, that if you will watch this video carefully and after that if you will read these questions and answers again, you will revise them, then definitely you are going to score full marks from this chapter, because I have taken all the important things, all the important topics जहाँ से question बन सकता है exam में. So either directly or indirectly question will be asked from this chapter, from this video only. This is the disclaimer. So I think this thing is enough for you to watch this video and to learn these question answers. अगर एक इस वीडियो को देख के आपको full marks मिल जाते हैं इस chapter से, तो what's the loss, right? All right, so let us start. The name of the chapter is, as you all can see, resource. What is resource? You might be aware now that resource is something which can satisfy our need. The thing is need. That अगर कोई भी object हमारी किसी need को satisfy कर रहा हो, हमारी need को met कर रहा हो, then it means that it is a resource for us, right? If I am, say, feeling thirsty, and if I see a glass of water and if I drink that water, so that water becomes a resource for me. Why? Because उस एक ग्लास पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी, right? So anything which satisfy your need will be termed as resource. Resource के कुछ features होते हैं, क्या कि हर एक रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है. ऑब्वियसली रिसोर्स से तो कुछ वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में हो, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है. सम वैल्यूज आर इन मनी टर्म्स, सम आर नॉट इन मनी टर्म्स. दे आर कॉल्ड एस्थेटिक वैल्यूज, जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में नहीं होती, दे आर कॉल्ड एस्थेटिक. सो एवरी रिसोर्स हैज़ अ वैल्यू, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन मनी टर्म्स, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू. और क्या होता है कि हर एक रिसोर्स की यूटिलिटी होती है. एवरी रिसोर्स हैज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या है कि इट विल सेटिस्फाई योर नीड. यूटिलिटी का मतलब ही होता है यूजेबिलिटी, मीन्स समथिंग विच यू when you will use, it will satisfy your need. So every resource has utility, or we can say usability, means it will be of some use for you, और तभी वो obviously resource बना. अगर कोई एक सामान पड़ा है और आपके किसी काम का नहीं है, तो maybe that is not a resource for you. So every resource has some value, every resource has utility, or we can say usability. These are certain features of resources. वे types होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसके लिए आपको chapter पढ़ना पड़ेगा. If you want, I will make a separate video in the form of summary of the entire chapter, जिसको हम conclude कर लेंगे 15-20 minutes में. पूरे chapter को हम summarize कर सकते हैं. I'll make that video बाद में. अभी हम लोग question answers discuss करते हैं. पहले हम important term से discuss करना शुरू करेंगे. First is important term which is resource. अभी बता दिया क्या होता है रिसोर्स. कोई भी ऐसा सामान भाई जिससे तुम्हारी नीड सेटिस्फाइड होती हो, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. तो द की वर्ड इज नीड एंड सेटिस्फाई. नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए तो रिसोर्स. तो अगर मुझे एक माइंड मैप बनाना हो, एक फ्लो चार्ट बनाना हो, उसमें मुझे लिखना हो रिसोर्स क्या होता है, तो मैं सिर्फ 2 वर्ड लिखूंगी, नीड, सेटिस्फाई. इसी से मेरा पूरा लाइन बन जाएगी. तो मुझे लर्न क्या करना पड़ा, सिर्फ 2 वर्ड, नीड और सेटिस्फाई, और पूरा मेरा डेफिनेशन बन गया. व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स. सो जस्ट 2 वर्ड्स आर हेल्पिंग यू टू फ्रेम होल ऑफ द डेफिनेशन. ऐसे लर्न करना चाहिए. कीवर्ड्स पकड़ो, कीवर्ड सिर्फ 2 वर्ड याद करो और डेफिनेशन बना लो. सो दैट इज सिंपल. अनदर वन, रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन नाम से ही समझ में आता है, रिसोर्स को कंजर्व करना, बचाना, केयरफुली यूज करना, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट ना करना, उसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं, राइट? सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन.
तो पहली लाइन तो बहुत क्लियर है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि बहुत एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, तो केयरफुली यूज़ करो। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको टाइम दो ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सके, रिप्लेनिश हो सके, दोबारा से बन सके, राइट। So we should use the resource carefully and we should also give time to the resource to get replenished or to get renewed, ताकि वो दोबारा से जो उनका फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो होता रहे, ठीक है। And that is called resource conservation, and we shall practice this resource conservation in our everyday life by saving water, by saving electricity and what not, right? Then comes another thing related to resource conservation only, which is sustainable development. ये आपको grade 10 में भी this chapter is going to help you a lot. So if you will study this chapter properly in grade 8, grade 10 will be very easy for you, because इसी का थोड़ा बहुत extension grade 10 में आ जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल वर्ड समझ लिया तो समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल का मतलब होता है टू सस्टेन समथिंग फॉर फ्यूचर, है ना। वी हैव टू सस्टेन आवर लाइफ ऑन अर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करना है, मतलब आगे तक रखना है इसको, उसी तो सस्टेनेबल मतलब समथिंग विच वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि सस्टेनेबल, मतलब जो आज की जनरेशन है उसकी नीड भी सेटिस्फाई होती हो, और जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड भी सेटिस्फाई हो जाए। रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो, ऐसा भी नहीं कि रिसोर्स को यूज़ ही मत करो, यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल होंगी। सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज बट केयरफुली, बट जुडिशियसली, सो दैट वी आर बैलेंसिंग द नीड। तो बैलेंस करके चलो, ना बहुत ज़्यादा यूज़ करो, ना बिल्कुल ऐसे कि यूज़ ही नहीं कर रहे, प्यास लग रही है प्यासे पड़े, नहीं सेव वाटर, नहा ही नहीं रहे, क्यों नहीं सेव वाटर, नहीं ऐसा नहीं है। यू शुड टेक बाथ डेली बट इन अ मैनर कि वाटर वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं शावर चला के बैठे हुए हैं 1 घंटे तक पानी वेस्ट कर रहे हैं, नो, टेक अ बाथ इन अ मैनर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग द वाटर। सो यू हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज बट इन अ बैलेंस मैनर, सो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू सेटिस्फाई योर नीड, और जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी आप रिसोर्स छोड़ दो। ऐसा नहीं हो फ्यूचर जनरेशन को पानी ना मिले, वो पानी के लिए तरसते रह जाए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो सस्टेन करना है, फ्यूचर के लिए बचाना है। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो बट ऐसे हो जिसमें रिसोर्स आज भी यूटिलाइज हो रहे हो और कल फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनके लिए भी रिसोर्स रहे। तो जुडिशियसली या केयरफुली या बैलेंस तरीके से यूज़ करना है रिसोर्सेज को, ठीक है। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, यूज़ करो रिसोर्सेज को लेकिन बैलेंस तरीके से, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करो, देन इट मीन्स यू आर डूइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। ऐसा नहीं कि आज तो पूरा डेवलपमेंट कर ले, सारे रिसोर्स आज ही यूज़ कर ले, कल के लिए पता ही नहीं है, फिर आगे आने वाले इन नेक्स्ट 10-15 years पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो गया। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट। Next one is human resource development. Very clear from the word itself. Human resource development means the development of this human resource. Now what is human resource? We the people are human resource. We the people, तो हम लोग human resource हैं, right? So we, this person, say this is a boy, so this is a resource. कैसे human resource बनता है? अगर उसके पास knowledge है, उसके पास skill है, talent है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन इज कॉल्ड अ रिसोर्स। सो एवरी ह्यूमन इज अ रिसोर्स because if they possess skill, if they possess knowledge, if they possess talent, if they possess innovative ideas, so पढ़ाई लिखाई करके हर एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। दैट इज दी समरी। और उसी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, मतलब उसकी स्किल को और इम्प्रूव करना है। ह्यूमन के पास ऑलरेडी स्किल है, सपोज आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल है, तो आपकी इस आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल को क्या करना है, एनहांस करना है। सो यू विल टेक क्लासेस फॉर इट, यू विल टेक ट्यूशंस फॉर इट, यू विल गो टू सम इंस्टीट्यूट और टू सम स्कूल और टू सम एकेडमी, जहाँ पे आप और ज़्यादा ये आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में सीखोगे। सो बेसिकली टू एनहांस योर स्किल so that you can do some more innovations, you can make some more beautiful paintings, that is called human resource development। तो आपके पास जो स्किल है उसको और enhance और improve करने के लिए उस पूरे प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। सो यू कैन रीड इट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, जो भी स्किल आपके पास है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिफाइन करना, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि आप और अच्छे रिसोर्सेज बनाओ, ठीक है। If today say you know
लाइक आपको बहुत अच्छा डांस आता है, सो देन यू विल टेक मोर डांस क्लासेस सो दैट यू विल रिफाइन योर सेल्फ, यू विल एनहांस योर डांसिंग स्किल्स, और फिर आप और अच्छे लेवल पे डांस करोगे. हो सकता है फिर कल को आप एक सुपर डांसर बन जाओ, राइट? सो यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स सो दैट यू आर एबल टू create more valuable resources in the future, and that whole process is termed as human resource development, HRD. HRD करके हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री भी है which is responsible for this human resource management. पूरे ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव HRD मिनिस्ट्री. द नेम ऑफ दिस मिनिस्ट्री हैज़ बीन चेंज्ड नाउ एंड इट इज़ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है? HRD मिनिस्ट्री पहले नाम होता था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नेम चेंज हो गया, क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. फाइन. एंड इसके हेड कौन है? Who is the head of Ministry of Education? This is your homework. Go and check it out and answer it in the comment section down below. Alright, let's move further. What is patent? Patent क्या होता है? Patent is something you can understand that it is first of all one right given to you. ठीक है? ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो सिर्फ आपको दी गई है. आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया से ए, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आपने लॉन्च किया और आपको ये है कि nobody else should copy your idea. ठीक है? यू हैव ब्रॉट सम वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, और कोई और भी हो सकता है आपके उस प्रोडक्ट को देख के कॉपी करके सेम एक और वैसा बना दे. सो व्हाट यू विल डू, यू विल गेट द पेटेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. आप अथॉरिटी के पास जाओगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, और जाके वहाँ से एक राइट ले लोगे, और वो राइट ही हम पेटेंट बोलेंगे उसको. दैट राइट विल बी एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू यू ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन विच इज डन बाय यू. फिर आप ही का राइट है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही प्रोड्यूस करोगे. अगर कोई और करना चाहता है देन दैट पर्सन हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम यू, बिकॉज वो आपका आइडिया था, इट वाज योर ओन इनोवेटिव आइडिया. सो यू विल गेट द पेटेंट ओवर दैट, ताकि वो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए कि नोबडी एल्स कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, आपको कोई कॉपी ना कर सके. ठीक है? तो किसी को दोबारा किसी और को प्रोड्यूस करना है तो आपसे परमिशन लेके ही विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एंड देन दैट पर्सन कैन, यू विल गिव द परमिशन टू दैट पर्सन. तो जैसे कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट से रिलेटेड ही पेटेंट होता है. बस कॉपीराइट्स जो होता है वो बेसिकली दिया जाता है लिटरेरी वर्क के लिए. लाइक किसी ने नॉवल लिख दी, किसी ने कोई सॉन्ग लिख दिया, कोई पोम लिख दी, उसके लिए कॉपीराइट दिया जाता है. ठीक है? और प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए पेटेंट दिया जाता है. ऐसे एक ट्रेडमार्क करके भी होता है. सो यू कैन जस्ट रीड इट आउट दैट व्हाट इज पेटेंट. इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट. की वर्ड इज एक्सक्लूसिव राइट, मीन सिर्फ आपका ही राइट है ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. आपका कोई इनोवेटिव आइडिया था या आपने कोई इनोवेटिव इन्वेंशन कर दी, उसके ऊपर आपको एक राइट मिल जाता है, उसको बोलते हैं पेटेंट. वेरी सिमिलर टू कॉपीराइट. देन टेक्नोलॉजी. रोज टेक्नोलॉजी की बात होती रहती है. यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज नथिंग बट योर लेटेस्ट नॉलेज. जो भी नया नया लेटेस्ट नॉलेज आप अपने यूज़ करते हो कोई नई चीज़ को बनाने में, टू मेक न्यू थिंग्स, then that is called technology. What is technology? Application of the latest knowledge. आपने जो नए काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के, काफ़ी सारी डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स लेके, whatever you have learned, you have gained your knowledge, the latest knowledge. Now you are going to apply that theoretical knowledge in making something or in doing something. So that application of your latest knowledge while you are making certain new thing, that whole process is called technology. तो टेक्नोलॉजी क्या है? अपनी लेटेस्ट नॉलेज को यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं. यू कैन रीड इट आउट. टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज और स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग. या तो कोई काम करने में आप लेटेस्ट नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ बनाने में आप अपनी लेटेस्ट नॉलेज का यूज़ कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड टेक्नोलॉजी. Then comes the very short questions. Number 1 is, why are resources distributed unequally over the earth? Very important question. Very expected question. Why are resources distributed unequally over the earth? Now you will agree with this that we do not find all the resources at all the places, right? Iron हमें कहीं कहीं मिलता है ना, gold कहीं मिलेगा. So different resources are there at different places. Iron mines एक जगह लोकेटेड है, गोल्ड माइंस कहीं और हैं, कॉपर माइंस कहीं और मिलेंगी, ऑयल रिसोर्सेज कहीं और मिलेंगे. ऐसा तो नहीं है ऑयल पूरी दुनिया में हर जगह ऑयल प्रेजेंट है, हर जगह गोल्ड माइंस प्रेजेंट है. नो, इट इज़ नॉट देयर.
So the question is asking this only, that why other these resources are distributed unequally, क्यों एक जगह भरमार है एक की और दूसरी जगह उसी चीज़ की डेफिशिएंसी है. So it all depends upon the physical features of our earth. Physical features का मतलब क्या है कि हर जगह का क्लाइमेट सेम नहीं होता, राइट. हर जगह की टोपोग्राफी सेम नहीं होती. टोपोग्राफी मतलब कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, राइट. हर जगह जगह का एल्टीट्यूड सेम नहीं होता. हाइट पे आप जितने ऊपर जाते रहते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है. सो बिकॉज ऑफ दीज difference in these physical features, the difference in the climate, the difference in the topography, the difference in the altitude, these are the reasons why resources are distributed unequally over the earth. You will agree that जो plant हमें plain areas में मिलेगा, plains में जो हम plant grow करते हैं, वही plant आपको mountain region में मिले ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, and obviously नहीं मिलेगा. रीज़न इज दैट माउंटेन का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का सॉइल टाइप अलग है, तो इसीलिए वहाँ की वेजिटेशन अलग है. प्लेन्स में वेजिटेशन अलग मिलेगी, साउथ इंडिया में वेजिटेशन अलग मिलेगी. क्यों कॉटन डेक्कन एरिया में ही ग्रो की जाती है? वाई डेक्कन एरिया जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, वाई दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू ग्रो कॉटन? बिकॉज वहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है और कॉटन को ग्रो करने के लिए वी नीड ब्लैक सॉइल, राइट. सो दीज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड unequally on the earth because of the differences in the physical features. कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं एलुवियल सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है. तो जो चीज़ एलुवियल में ग्रो हो सकती है वो उस जगह होगी, जो ब्लैक सॉइल में हो सकती है वो उस जगह होगी. सो हमें फिजिकल फैक्टर्स याद रखने हैं 2-3. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर द अर्थ बिकॉज द फिजिकल फैक्टर्स, टेरेन मतलब वही कि प्लेट्यू है, प्लेन्स है या माउंटेन्स है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड डिफर सो मच ओवर दी अर्थ. तो अर्थ पे एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जैसे हम माउंटेन पे जाते रहते हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है ना, हाइट बढ़ती रहती है. सो द डिफरेंस इन दीज फिजिकल फैक्टर्स की वजह से ही कहीं पे कोई रिसोर्स मिलता है तो कहीं पे कोई रिसोर्स मिलता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना. देन वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? भाई बहुत बता दिया. ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हमारे पास है स्किल, हम जो ह्यूमन्स हैं हमारे पास है नॉलेज, हम जो ह्यूमन्स हैं हमारे पास है टैलेंट. ठीक है, हमारे पास है इनोवेटिव आइडियाज़. और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ आवर स्किल, आवर नॉलेज, आवर आइडिया, आवर टैलेंट, वी आर एबल टू क्रिएट मोर वैल्यूएबल रिसोर्स, वी आर एबल टू क्रिएट मोर innovative resource. And if humans will not be there, you all will agree with this statement that if humans are not there, other resources would be of no use. उनका कोई यूज़ होगा? अभी हमें पता है कि सनलाइट से सोलर एनर्जी वी कैन एक्सट्रैक्ट. हमें पता है वाटर इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी और उस वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. इफ़ ह्यूमन इज नॉट देयर तो वाटर से कौन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है? सोलर, सनलाइट में भी एनर्जी होती है, उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके वी कैन यूज इट इन एम्पल थिंग्स. सो हु विल मेक दिस इफ ह्यूमन इज नॉट देयर? सो इफ ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट बी देयर, अदर नेचुरल रिसोर्सेज वुड बी लाइंग आइडल. कोल, गोल्ड, डायमंड कुछ भी हो सब ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर ह्यूमन उसको यूज़ करेगा नहीं तो, राइट. सो दैट इज वाई ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू ऑल कैन राइट द आंसर दैट human resource is the most valuable resource because it is the human who possess different skills, knowledge, ideas, talent, through which he is able to create more and more valuable resource, right? And also, if human resource will not be there, then other natural resources would be lying idle. वो खाली ऐसे ही पड़े रहेंगे. That is why human resource is very important. ठीक है जी, पढ़ लो एक बार. Human resources are important because they make use of natural resources to create more and more valuable resource. क्योंकि हम humans ही हैं जो natural resource को use करके और valuable resources बनाते हैं अपनी skill, knowledge, talent की help से. अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे natural resources भाई आराम से बैठे रहेंगे, उनका कोई काम नहीं होगा. Next one is name two factors which can convert normal substance into a resource. Very simple. एक ये कोई object है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, बट कल को ये मेरे काम का हो जाएगा. कैसे हो सकता है? वॉट आर दोज टू फैक्टर्स विच कैन कन्वर्ट दिस नॉर्मल सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स? वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, हो सकता है ये रिसोर्स मेरे काम का आज इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है और मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की, राइट. फॉर एग्जाम्पल विंड तो शुरू से ही चल रही थी, ठीक है,
अर्थ पे विंड तो बहुत पहले से ही है, शुरू से ही है, बट हमें बाद में ये टेक्नोलॉजी मिली जिसकी हेल्प से हम लोग विंड को ट्रैप करके वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ विंड एज वेल, विच इज कॉल्ड विंड एनर्जी. विंड मिल्स लगे हुए हैं, राइट. सो दैट टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड लेटर. सो पहले विंड का हमारे पास कोई यूज़ नहीं था, लेकिन व्हेन वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी तो विंड का हम यूज़ करने लगे और काफ़ी सारी चीज़ों में, राइट. ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करा. पानी तो बहुत पहले से ही था, पानी में काइनेटिक एनर्जी भी पहले से ही थी, बट हमें तब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी हेल्प से हम उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके. सो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ग्रेजुअली टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और हम लोग नए नए रिसोर्स बनाने लगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे, वाटर से भी, विंड से भी, सोलर से भी, है ना. सो इट इज़ ऑल विच हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि हम लोग सोलर से भी एनर्जी लाइट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विंड का भी यूज़ कर रहे हैं, राइट. सोलर, विंड, वाटर का भी कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम हुआ. जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें और नॉलेज मिलती गई और हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, ठीक है. देन अनदर इज, सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आंसर है इसका. राइट एनी टू फीचर्स ऑफ रिसोर्स. तो अभी शुरू में ही बता देगा, हर एक रिसोर्स की वैल्यू होती है एंड एवरी रिसोर्स हैज यूटिलिटी, या फिर इसको यूजेबिलिटी भी बोल सकते हैं. मतलब हर एक रिसोर्स का कुछ ना कुछ यूज़ होता है. फिर शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आई विल रिपीट, 3 पॉइंट्स शुड बी देयर, क्योंकि 3 नंबर का होता है. 3 मार्क मीन्स 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स. डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो खत्म नहीं होंगे. नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और बनने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे. सो सिंपल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दीज आर द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड क्विकली, जो जल्दी हो जाते हैं, रिन्यू दोबारा से जल्दी बनते रहते हैं. एंड ऑल्सो सम ऑफ देम आर अनलिमिटेड इन स्टॉक. सारे रिन्यूएबल अनलिमिटेड नहीं है, बट काफ़ी अनलिमिटेड. जैसे सोलर एनर्जी खत्म थोड़ी हो जाएगी, तो सोलर एनर्जी इज अनलिमिटेड. विंड एनर्जी अनलिमिटेड है ना. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड क्विकली और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो बनते रहते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, खत्म नहीं होने. दे आर अनलिमिटेड इन स्टॉक. 2 एग्जाम्पल बता दो उसके. तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दोनों एग्जाम्पल हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड इन स्टॉक. वो लिमिटेड है, एक बार खत्म हो गए ना तो फिर बैठे रहना आप हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि दे विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड. इसीलिए उनको हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. वंस द स्टॉक गेट एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश. अगर एक बार ही खत्म हो गए तो फिर तो बहुत समय लगेगा बनने में. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कोल एंड पेट्रोलियम. जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है ना, उनको टाइम लगता है बनने में. तभी बोलते हैं बचाओ, कोल को एक्सेस यूज़ मत करो, ऑयल का एक्सेस यूज़ मत करो, ठीक है जी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है आपने. एंड वन क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी वन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक्चुअली 2 विच आर लिमिटेड इन स्टॉक. है तो वो रिन्यूएबल लेकिन लिमिटेड है और हम उसको बोलते रहते हैं भाई सेव करो सेव करो सेव करो. तो यू कैन गेस विच इज़ दैट रिसोर्स विच वी ऑफन से कि वी शुड सेव दिस रिसोर्स, एंड दैट इज़ रिन्यूएबल, बट स्टिल हम उसको बोलते हैं कि सेव करो बिकॉज स्टॉक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है. या फिर हम कह सकते हैं जो फ्रेश है वो चीज़. अब तो आंसर ही पता चल जाएगा ऐसे तो. नाउ यू गेस कि विच इज़ दैट रिसोर्स विच इज़ एक्चुअली रिन्यूएबल बट लिमिटेड इन स्टॉक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो शॉर्ट में सुन लो. रिसोर्स होते हैं जी 3 टाइप के. एक होते हैं नेचुरल रिसोर्स, जो कि नेचर ने हमें डायरेक्टली दी है और हम उनको बहुत ही कम मॉडिफिकेशन करके डायरेक्टली उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. जैसे आप जानते हैं सनलाइट दी है भगवान ने, एयर दी है, वाटर दी है, फॉरेस्ट दी है, ठीक है. फिर एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड मतलब ऑब्वियसली जो ह्यूमन ने डेवलप किए हैं. एग्जाम्पल, कार्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं. टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हम ही ने बनाई है. और फिर तीसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वी द पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, राइट. वही इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बारी. रिसोर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड into 3 types. Natural resource, the resource provided by the nature are called natural resource. Example, trees. आप बहुत सारे एम्पल आंसर्स लिख सकते, इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? व्हेन पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक रिसोर्स इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स. एग्जाम्पल, पेन, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी,
कार, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं. और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर एंड क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ पीपल. तो हमारा नंबर ऑफ पीपल और द एबिलिटी ऑफ द पीपल. सो वी द पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स. लॉन्ग आंसर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इट इज़ राइट एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रखा है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा, बिकॉज इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है ना. तो इसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स ही पूछे जाएंगे. क्या है? 5 6 दिए हुए हैं बुक में, उनको ऐसे एज इट इज़ लर्न कर लेना है. नंबर 1 इज़ वी शुड रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अर्थ पे हर एक लाइफ इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द ह्यूमन, ऑल द बर्ड्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल द इंसेक्ट्स, ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ आर इंपॉर्टेंट. सो वी शुड रेस्पेक्ट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सेकेंड इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ को सिर्फ बस जी रहे हैं ऐसा नहीं. इट शुड बी अ क्वालिटी लाइफ. मतलब पॉल्यूशन को कम करो, राइट, नॉइज पॉल्यूशन को कम करो, ह्यूमैनिटी बढ़ाओ, लोग की हेल्प करो. तो ह्यूमन लाइफ शुड बी अ क्वालिटी ह्यूमन लाइफ. तो हम लोग को ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सबको रोकना है सो दैट वी कैन लिव अ गुड लाइफ ऑन अर्थ, वी कैन लिव अ क्वालिटी लाइफ, राइट. सो वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिस वजह से इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई पॉल्यूशन कम फैलाओ. और ठीक है, सो यू कैन लाइक यू शुड कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, दैट विल ऑल्सो एड क्वालिटी टू द ह्यूमन लाइफ, ऐसे करके. थर्ड वन इज कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. अर्थ इज़ वेरी डाइवर्स. अर्थ पे सब कुछ है. अर्थ पे एक छोटा सा इंसेक्ट भी है, अर्थ पे कभी डायनासोर भी थे, राइट. छोटा सा प्लांट भी है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, छोटा सा एनिमल, बड़े से एनिमल, एवरीथिंग इज देयर. अर्थ इज़ वेरी डाइवर्स, ठीक है. बहुत टाइप का वेजिटेशन है, बहुत टाइप की वाइल्ड लाइफ है, बहुत टाइप के फॉरेस्ट है, एवरीथिंग. अर्थ इज़ वेरी डाइवर्स. सो वी हैव टू मेंटेन दिस डाइवर्सिटी. जो ये वाइटैलिटी, एक पॉजिटिव एनर्जी जो अर्थ के अंदर है, वी हैव टू मेंटेन इट, वी हैव टू कंजर्व इट. खराब मत करो, अर्थ को बैरन मत बनाओ. फोर्थ वन इज मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो अगर अनलिमिटेड भी है तो ऐसा नहीं है कि उनको बस यूज़ करे ही जा रहे हो, ख़त्म कर देंगे. वाटर है, ठीक है, वी हैव अनलिमिटेड वाटर ऑन दी अर्थ, बट इट डजंट मीन दैट वी हैव टू वेस्ट वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी तो कम है ना. सो वी हैव टू सेव देम. वी हैव टू मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कोल को ध्यान से यूज़ करना है. कोल नेचुरल रिसोर्स है बट नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए ध्यान से यूज़ करो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट. अब हमें क्या करना है? हमें लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. दैट कम्युनिटीज़ शुड कम देमसेल्स, दे शुड कम फॉरवर्ड देमसेल्स एंड दे शुड स्प्रेड अवेयरनेस कि हमें खुद से करना है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट समबडी शुड पुट सर्टेन restrictions on you, some laws should be brought by the government and then only you will stop doing some harm to the earth. No, you should do it on your own. It is not compulsory that every time one should come and tell you, beta, switch on the light when you are not in the room, switch on the fan when you are not in the room, use staircase instead of escalators or elevators if you are living on say second, third or fourth. Fourth ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक है, second, third or fourth the floor. So it is not that every time someone has to teach this. You should come forward on your own. So इसी में इस पॉइंट में वही लिखा है that we should enable the communities to take care for their own environment. Environment ना तुम्हारा है ना मेरा है, हम सबका है. Environment it belongs to all of us, so we all should take care for this. So ये कुछ 5 principles है sustainable development के, and hence this chapter is over. इस chapter में यही सब था. I hope you are able to understand the answers for all these questions. Again, if you want the PDF, let me know in the comment section down below. I will attach the PDF in the description box itself. Alright, if you have any doubts, let me know. I will clear them in some other video. Also, I will make one summary video of this chapter in which you can revise the whole chapter in just 15 or 20 minutes. Alright, so on this note, let us end this meeting, and okay, that's all. I'm signing off. Thank you so much. Take care, everyone. Bye bye.